آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ آئی پی ایس آفیسر سی وی آنند ریاست کے نئے ڈی جی پی مقرر، حکومت کی جانب سے احکامات کیے گئے جاری۔ ریاست میں خواتین اور بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسپندنا نامی ایک نئی پہل کا آغاز، وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی کا تقریب سے خطاب۔ تلنگانہ میں شدید گرمی کی لہر، نظام آباد میں درجہ حرارت 46 ڈگری پار، لو لگنے سے مزید 2 افراد کی موت۔ تلنگانہ ایس ایس سی امتحانات کے نتائج کل بروز چہارشنبہ دوپہر 2 بجے جاری کیے جائیں گے۔ سنگاریڈی کے جوگی پیٹ میں ڈیٹینشن سینٹر کا قیام، غیر قانونی بیرونی شہریوں کو رکھا جائے گا۔ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن کے کشن باغ میں صوفہ تیاری کے کارخانے میں لگی آگ، بھاری مالی نقصان کا خدشہ۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریاست تلنگانہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جہاں تیز دھوپ اور جھلسا دینے والی گرمی نے معمولات زندگی متاثر کر دیے ہیں۔ صبح 8 بجے سے ہی سورج کی تپش سے عوام پریشان ہے۔ ریاست میں پہلی بار درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے، جس پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ حکام کے مطابق پیر یعنی 27 اپریل کو صرف ایک دن میں ہیٹ اسٹروک سے مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ نظام آباد ضلع میں سب سے زیادہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ عادل آباد، نرمل اور پیداپلی اضلاع میں 45.9 ڈگری اور دیگر علاقوں میں 45 ڈگری سے زائد درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں زیادہ سے زیادہ 42.5 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ ہوا، جس کے باعث شہری زندگی متاثر رہی۔ شدید گرمی کے باعث مختلف اضلاع میں اموات بھی رپورٹ ہوئی، جن میں منچریال کے 56 سالہ بھوگا راپو ماریا، پیداپلی کے 19 سالہ دشرتم سوامی اور نارائن پیٹ کے ایک بزرگ شخص کی ہارٹ اسٹروک سے موت شامل ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 3 دن تک ہیٹ ویو کی شدت برقرار رہے گی اور درجہ حرارت میں مزید 1 سے 2 ڈگری اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ شمالی تلنگانہ کے چند مقامات پر ہلکی بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں نئے ڈی جی پی کے طور پر سی وی آنند کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے احکامات جاری کیے ہیں۔ موجودہ ڈی جی پی شیودھر ریڈی اس ماہ کی 30 تاریخ کو ریٹائرڈ ہونے والے ہیں۔ حال ہی میں یو پی ایس سی نے ڈی جی پی کے عہدے کے لیے اہل آئی پی ایس افسران کی فہرست ریاستی حکومت کو بھیجی تھی۔ اس فہرست میں سی وی آنند کے ساتھ 1994 بیچ کے ونائک پربھاکر آپٹے اور سومیا مشرا شامل تھے۔ ان تینوں میں سے سب سے سینئر ہونے کے بنیاد پر حکومت نے سی وی آنند کو ڈی جی پی مقرر کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے ریاست میں خواتین اور بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسپندنا نامی ایک نئی پہل کا آغاز کیا ہے۔ اسپندنا ٹیمیں خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم یا کسی بھی خطرے کی صورت میں فوری رد عمل اور مدد فراہم کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر سیتاکا، ایم پی انل کمار یادو، کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار آئی پی ایس کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے
نے منشیات کے غلط استعمال کے خلاف سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ریاستی حکومت سخت کارروائی کرے گی اور منشیات سے متعلق معاملات میں ملوث پائے جانے پر با اثر افراد، سیاستدانوں یا مشہور شخصیات کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جون سے شروع ہونے والے تعلیمی سال سے اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ لینے والے طلباء کو منشیات سے دور رہنے کا عہد کرتے ہوئے ایک انڈر ٹیکنگ جمع کروانی ہوگی۔ منشیات کی بڑھتی ہوئی لعنت سے نمٹنے کے لیے پولیس کو چاہیے کہ وہ شہر کی دیرینہ امن کمیٹیوں کو اس اہم کام میں شامل کرے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ان کمیٹیوں نے پہلے بھی فرقہ وارانہ جھڑپوں کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کمیٹیوں پر زور دیا کہ وہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی سے آگے بڑھ کر اپنی توجہ مرکوز کریں اور منشیات کے خلاف مہموں میں فعال طور پر حصہ لیں۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ منشیات کی لعنت تیزی سے خواتین اور لڑکیوں کے خلاف مظالم کا باعث بن رہی ہے، اور زور دے کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت ایسے مجرموں سے سختی سے نمٹے گی۔ నగర ప్రముఖులందరినీ ఆహ్వానించి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో మహిళలకు అదేవిధంగా పిల్లలకు భద్రత రక్షణ కల్పించడం ప్రభుత్వాలు బాధ్యతగా భావించి ఏ దేశంలో అయితే మహిళలకు పిల్లలకు భద్రత రక్షణ కల్పిస్తున్నారో ఆ దేశాల యొక్క అభివృద్ధి అత్యంత వేగంగా జరుగుతుంది। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రము లేదా ఈ దేశంలో దేశ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆనాటి మొట్టమొదటి ప్రధాని అదేవిధంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు, మహాత్మా గాంధీ గారు రాజ్యాంగాన్ని రాసుకోవాలి, ఈ దేశాన్ని పరిపాలించడానికి అవసరమైన చట్టాలను శాసనాలను చేయాలి, అందులో ఎవరెవరికి హక్కు, ఎవరెవరికి బాధ్యత, ఎవరెవరిని పాత్రదారులుగా నిర్ణయించాలో చర్చ జరిగినప్పుడు మొట్టమొదటిసారి దేశంలో మహిళలకు ఓటు హక్కు ఇవ్వడం జరిగింది। అమెరికా లాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో మహిళలకు ఓటు హక్కు ఇవ్వడానికి 150 సంవత్సరాలు పట్టింది। మహిళలు తమ హక్కు కోసం, ఓటు హక్కు కోసం అమెరికా లాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశంలోనే సాధించుకోవడానికి చాలా సమయం పట్టింది। కానీ భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చిన ఎంబడే రాజ్యాంగంలోనే పురుషులతో పాటు సమానమైన ఓటు హక్కును, ఈ దేశంలో మహిళలకు ఓటు హక్కును కల్పించడం ద్వారా మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఈ దేశం యొక్క అభివృద్ధిలో మహిళల్ని పురుషులతో పాటు సమానమైన హక్కును కల్పించడం। रेलवे पुलिस तेलंगाना ने एक बेहतरीन इक़दाम करते हुए सफ़र के दौरान चोरी हुए और गुमशुदा हुए तकरीबन 1500 मोबाइल फ़ोन्स का सुराग लगाते हुए इन मोबाइल फ़ोन्स को बोनाफाइड ओनर्स के हवाले किया। इन बरामदशुदा मोबाइल फ़ोन्स की मालियत 2 करोड़ रुपये बताई गई है। चोरी हो जाते या गुम जाते उसका मेला लगाए हमारे आईजी साहब रमेश नायडू साहब आईपीएस के इंस्ट्रक्शन पे और हमारे इंचार्ज एसआरपी गोने संदीप सर के इंस्ट्रक्शन पे कि जुमला ये साल 150 फ़ोन रिकवर करे सीआर पोर्टल्स के ज़रिए। इसमें ये फ़ोन कैसा हो जाता, बाज़ लोग जो ट्रेन में जब सफ़र के दौरान ट्रेन के अंदर चार्जिंग रख के वॉशरूम जाके आते, भूल जाते, उतरते वक्त भूल जाते, सो जाते, तो लोग चुरा लेते फ़ोन। और ट्रेन में चढ़ते वक्त बच्चे रहते या तो ज़्यादा लगेज रहता तो उन लोगों का कंसंट्रेशन नहीं रहता, उसकी वजह से भी फ़ोन चोरी हो जाते हैं। तो जो जैसा अगर फ़ोन चोरी होगा किसी पैसेंजर का रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि CEIR पोर्टल बोल के गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के
पोर्टल है, एक ऐप है, ये 19 अप्रैल 2023 को से शुरू हुआ है। इसके अंदर इमीडिएटली आपके फ़ोन के पर्टिकुलर्स जैसे IMEI नंबर होना, अपना सेल फ़ोन नंबर और आपके जो पर्टिकुलर्स है इमीडिएटली उसमें सबमिट कर देना, अपलोड कर देना। उससे क्या होता, आपका फ़ोन ब्लॉक हो जाता और वो फ़ोन फिर कोई भी उसमें अंदर कोई भी सिम डाले, समझो इस्तेमाल करने का नहीं, खाली सिम डालते ही अपने को जगह का लोकेशन आ जाता, कहाँ पर है क्या है। उसके ज़रिए पुलिस की टीम है, पुलिस की टीमों को भेजा जाता, वहाँ से ये फ़ोन रिकवरी करते हैं। ये फ़ोन न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ये इन रियासतों से ये फ़ोनों को रिकवर करे। इसमें हमारे टीम, IT सेल और स्पेशल पुलिस के भी इसके अंदर कुछ ऑफिसर्स है, RPF के भी है। ये काफ़ी मेहनत करके ये 150 फ़ोन को रिकवर किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नामपल्ली हल्के की आंगनवाड़ी टीचर्स में कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से सीविंग मशीनों की तकसीम अमल में लाई। बाद अज़ां उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी टीचर्स ने इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी, जिसके फौरी बाद ये काम किया गया है। आंगनवाड़ी टीचर्स ने इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के खास हुक्म पर नामपल्ली हल्के में जितने भी आंगनवाड़ी टीचर्स हैं इनके साथ एक महीना पहले एक तफसीली मीटिंग की गई थी। इनके तमाम के साथ बैठकर जो तकलीफात ये लोग फेस कर रहे हैं या कोई भी परेशानी इनकी जो है उनके ताल्लुक से एक तफसीली बात हुई थी और अल्लाह के फज़ल से इन लोगों ने जो भी तकलीफात बोले थे उसकी नुमाइंदगी भी हमने कंसर्न कलेक्टर से की है और एक्स्ट्रा आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए भी नामपल्ली में हमने दरख्वास्त और रिप्रेजेंटेशन डाला है। और जब ये लास्ट टाइम पे मीटिंग हुई थी, खासतौर से जो हमारी तमाम बहनें हैं आंगनवाड़ी टीचर्स जो है उन्होंने एक दरख्वास्त की थी कि इनको स्विंग मशीन्स चाहिए ताकि ये उससे फ़ायदा कर सकें और अपने बच्चों को, जो गरीब बच्चों को ये लोग पढ़ाते हैं, उनके साथ साथ स्विंग करते हुए भी ये लोग कुछ कमाई कर सके। तो उनकी दरख्वास्त पर हमने जो वादा किया था और आज उस वादे पे खरे उतरते हुए तमाम जितने भी आंगनवाड़ी टीचर्स हैं नामपल्ली हल्के में, उन तमाम को आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की जानिब से स्विंग मशीन दिए गए हैं। इंशाल्लाह और जो भी हम सहूलत हो सकते हैं इनके लिए हम करेंगे और इनको हमने अपडेट भी किया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कौन से स्कीम्स नामपल्ली हल्के में हो रहे हैं और इन लोगों से भी दरख्वास्त की है ये कि गरीब आवाम तक पूरे स्कीम्स को पहुंचाए ताकि हमारे स्कीम्स हर घर तक पहुंच सके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो स्विंग मशीन से ये पूरी तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने उनको दिया है। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानी नताइज के ऐलान की तारीख तय कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक कल चाहरशंबे के रोज़ दोपहर 2 बजे नताइज जारी किए जाएंगे। इतलात के मुताबिक हुकूमत के मुशीर के केशव नताइज का ऐलान करेंगे। इम्तिहानात 14 मार्च से शुरू होकर उस माह की 13 तारीख को इख्तिताम पजीर हुए थे, जिनमें तकरीबन 5,15,000 रेगुलर तलबा ने शिरकत की। 23 अप्रैल तक जवाबी पर्चों की जांच मुकम्मल कर ली गई थी। पहले ये कहा जा रहा था कि नताइज मई के पहले हफ्ते में जारी होंगे, ताहम अब उन्हें 29 अप्रैल को जारी करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिक वज़ीर BRS पार्टी के लीडर हरीश राव ने आज संगरेड्डी जेल पहुंचकर पार्टी लीडर M कृषांक से मुलाकात की। हाल ही में M कृषांक को गिरफ्तार किया गया था। हरीश राव ने कृषांक की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने तेलंगाना पान शॉप एसोसिएशन के वफद के हमरा कमिश्नर पुलिस VC सजनार से मुलाकात करते हुए जब्त किए गए सामान की वापसी के सिलसिले में नुमाइंदगी की। मीडिया से बात करते हुए जुल्फ़िकार अली ने बताया कि एसोसिएशन की जानिब से जो पोस्टर्स तैयार किए गए हैं वो भी कमिश्नर पुलिस को दिखाए गए।
कमिश्नर पुलिस ने सामान की वापसी का तयख्खुन दिया है और ये भी बताया है कि बहुत जल्द वो पान की दुकानों के मालिकान के साथ मीटिंग रखेंगे और उनमें ड्रग्स के इसनादात से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया जाएगा। व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मैं तमाम पान डब्बों की एसोसिएशन वाले तेलंगाना पान एसोसिएशन हैदराबाद और सिकंदराबाद तमाम अरकान मेरे साथ थे। उनको लेकर हमने अभी पुलिस कमिश्नर साहब से मिला, सजनार साहब से, और उनसे नुमाइंदगी की और ये पोस्टर भी उनको दिए गए हैं। वो बहुत उन्होंने वादा किया है कि सामान इनका अभी रिलीज़ कर दिया जाएगा और सामान रिलीज़ करने की उन्होंने अभी हिदायत दी। और उन्होंने कहा कि मैं तमाम पान के डब्बे वालों के साथ एक मीटिंग भी लेना चाहूँगा, मीटिंग लेकर भी उनको समझाऊँगा कि इससे जो स्कूलों के पास जो पान के डब्बे हैं उससे जो खराबी पैदा हो रही है माशरे में, ख़ास तौर से छोटे बच्चों में, वो भी मैं उनको समझाऊँगा, उन्होंने कहा। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमुल हैदराबाद में कई पेट्रोल पंप्स पर नो स्टॉक का बोर्ड भी देखा गया है। हुकूमत की तरफ से ये वजाहत भी की गई है कि कोई खिल्लत नहीं है, लेकिन अचानक अफवाहों के बाद पेट्रोल पंप्स पर हजूम उमड़ पड़ा था, जिसके बाद पेट्रोल की खिल्लत देखी जा रही है। गुज़िश्ता रात देर गए भी पेट्रोल पंप्स पर कतारें थी और आज सुबह से भी पेट्रोल पंप्स खुले हैं, वहाँ भी कतारें देखी गई। तेलंगाना हुकूमत ने गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्याई बाशिंदों के लिए डिटेंशन सेंटर कायम कर दिया है। इसे ट्रांजिट होम करार दिया जा रहा है। संगारेड्डी के जोगीपेट में से कायम किया गया है। 13 बैरूनी शहरियों को जिन्हें हैदराबाद से पकड़ा गया था उन्हें ट्रांजिट होम मुंतकिल किया गया है। वीज़ा कवायद की खिलाफ वर्जी गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान और हैदराबाद में क़याम पर कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद पुलिस की तरफ से होटल्स, मकान मालिकान, हॉस्पिटल्स और तालीमी इदारों को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि बैरूनी शहरियों को रिहाइश फराहम करने से कबल अच्छी तरह से जांच कर लें। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी वजीर बराए टेक्नोलॉजी अश्वनी विष्णु के हमरा विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड इंडिया AI हब का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और अदानी डिजिटल के जेत अदानी भी मौजूद थे। तेलंगाना भद्राद्री कोत्तागुड़म के दम्मापेटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस पर वोडायरा की जानिब से 350 रुपये का कनेक्शन लेने पर 1 लीटर फ्री पेट्रोल की पेशकश रखी गई है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हुआ है। बताया जाता है कि पेट्रोल की मौजूदा किल्लत के पेश नज़र मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ये ऐलान किया गया है, लेकिन बोतलों में पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि बोतल में पेट्रोल देना कानून की खिलाफ वर्जी है। शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 व्हीलर्स में आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं। मंगल के दिन किशन बाग के इलाके में बिहार का एक साकिन शख्स TVS पर घर जा रहा था कि अचानक प्लग शॉट की वजह से TVS में आग लग गई। फलकनुमा ट्रैफिक कांस्टेबल ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पीर की रात सुल्तान शाही रोड पर बुलेट गाड़ी में आग लगने से सनसनी देखी गई। इससे कबल ऐसी ही बुलेट गाड़ी में आग लगने के बाद जानी नुकसान हुए थे।
اسی کے پیش نظر مقامی واقعے کے بعد راستہ بند کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بلٹ میں پیٹرول بھرا ہونے کی وجہ سے اسے نکالنے کے دوران یہ واقعہ پیش آیا، تاہم کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن حدود کے کشن باغ میں صوفی کے ورک شاپ میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ سے ورک شاپ میں موجود سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقعے پر پہنچا۔ کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا، جبکہ مالی نقصان کا اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے۔ اقبال اکیڈمی حیدرآباد کے زیر اہتمام محفل اقبال لیکچر ہال اقبال اکیڈمی گلشن خلیل ماساب ٹینک کے زیر صدارت محمد ضیاء الدین نیر صدر اقبال اکیڈمی منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے سید ایوب حسین صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت نے شرکت کی۔ محمد عمر احمد شفیق معتمد عمومی کل ہند مجلس تعمیر ملت خیر مقدمی انہوں نے تقریر کی، اور اس محفل کو ڈاکٹر محمد ناظم علی سابق پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج مرتاڑ نظام آباد بعنوان علامہ اقبال کا پیام نوجوانوں کے نام، ڈاکٹر سید خلیل اللہ اویس بخاری صدر ابو الفدا اسلامک ریسرچ سینٹر بعنوان علامہ اقبال کا تصور مرد مومن، اور سید رؤوف ریحان معتمد عمومی اقبال اکیڈمی علامہ اقبال ہمہ جہت شخصیت نے مخاطب کیا۔ جناب انیس احمد شریک معتمد اقبال اکیڈمی نے اقبال اکیڈمی کی کارکردگی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ کلمات تشکر محمد سیف الرحیم قریشی شریک معتمد کل ہند مجلس تعمیری ملت نے ادا کیے۔ اس موقع پر حیدر صاحب، مولانا سید مدثر نظامی، محمد ہارون علی بھی موجود تھے۔ محمد عمر لائبریرین اقبال اکیڈمی نے انتظامات میں حصہ لیا۔ رادیو بنیوز کی دیگر خبروں پر محمد اختر کے ساتھ ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت 142 نشستوں پر چہارشنبے کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پہلے مرحلے کے دوران پیش آئے بعض واقعات کو دیکھتے ہوئے پولیس اور نیم فوجی دستوں کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ حساس پولنگ بوتھس کی نشاندہی کرتے ہوئے مسلسل پیٹرولنگ بھی جاری ہے۔ نیم فوجی دستوں کی طرف سے کئی حساس علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مقامی ووٹر سے بھی ملاقات کی گئی۔ امن و قانون کی برقراری کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ حساس مقامات پر CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ 2021 کے انتخابات میں دوسرے مرحلے کی جن حلقہ جات پر رائے دہی ہوئی تھی، وہاں پر TMC نے 123 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ اس بار BJP کی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں تقریباً 93% کی رائے دہی ہوئی تھی اور دوسرے مرحلے میں بھی بھاری پولنگ کا امکان ہے۔ 4 مئی کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ EVM اور دوسرے سامان کے ساتھ انتخابی عملہ پولنگ مراکز کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ چوبیس پرگناس کے پالٹا اسمبلی حلقے کے TMC امیدوار جہانگیر خان کو پولیس کی طرف سے انتباہ دیے جانے کے لیے آنے پر پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد جمع ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرکزی نیم فوجی دستے فلیگ مارچ کر رہے تھے اور اس دوران میں TMC کارکن بھی جمع ہو گئے۔ واضح ہے کہ جے پال شرما نامی UP پولیس کے عہدیدار کو مبصر بنایا گیا ہے اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن پر تنقیدیں بھی کی جا رہی ہیں۔ BJP کے گڑھ گجرات کے بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی شاندار کامیابی درج کی ہے۔ مجلس نے بھوج اور بھروچ میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ریاست کے بلدی انتخابات میں بھوج میونسپلٹی میں 3 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ بھروچ میونسپلٹی میں مجلس کے 4
वाराणसी में कामयाबी हासिल की है। मजलिस के सदापुर डंडरोल म्यूनसिपलिटी में भी अपना मजलिस ने खाता खोला है। जुमला 3 उम्मीदवारों की कामयाबी की इत्तला है। बोरसा म्यूनसिपलिटी में भी मजलिस ने एक वार्ड पर कामयाबी हासिल की है। इन इंतखाबात के जरिए अब मजलिस ने गुजरात में अपना कदम मजबूत किए हैं। दूसरी जानिब गुजरात की 15 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 84 म्यूनसिपलिटीज़, 34 डिस्ट्रिक्ट पंचायत, 207 ताल्लुकाती पंचायत के 26 अप्रैल को हुई वोटिंग के बाद आज वोटों की गिनती हुई है। 15 कॉरपोरेशंस पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। चकड़ा ताल्लुका में आम आदमी पार्टी ने 15 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की है। यह नया ताल्लुका बताया जा रहा है। सूरत कॉरपोरेशन पर भी बीजेपी को सबकत बताई गई है। अहमदाबाद में बीजेपी ने अब तक 9 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की है। बेशतर कॉरपोरेशंस में कांग्रेस का मुजाहरा ठीक नहीं रहा। गांधी म्यूनसिपलिटी में तमाम 24 नशिस्तों पर बीजेपी को कामयाबी मिली है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी निकोबार आइलैंड पहुंच गए हैं। मुकामी कांग्रेस लीडर्स ने राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर पीडीपी के लीडर इल्तिजाम मुफ्ती ने रियासत में उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया है। इल्तिजाम मुफ्ती ने बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी उर्दू को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्दू हमारे अदब व तहजीब का हिस्सा है, लेकिन आज इस ज़बान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस उर्दू के ख़िलाफ़ हो रही नाइंसाफ़ी पर खामोश तमाशा देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्किम मशरिक़ की जन्नत है। सिक्किम की बेमिसाली खूबसूरती, पुरअमन माहौल और रूहानी खुशी का तजुर्बा करना खुशकिस्मती की बात है। वज़ीर-ए-आज़म सिक्किम के दारुल हुकूमत गैंगटोक में खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज उनके दौरे को लेकर भी अपने ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी सयाह ने सिक्किम के बागात नहीं देखे तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस यकीन का इजहार किया कि सिक्किम इस साल सियाहत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में 4000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। सिक्किम के मुकामी लीडर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, जो इस वक्त किर्गिस्तान के दौरे पर हैं, शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बेलारूस के वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादले ख़याल की इत्तला है। दाऊद इब्राहिम के मुबैना करीबी साथी डोला कौतरी की से मुल्क बदर किए जाने के बाद दिल्ली पहुंचने पर तहवील में ले लिया गया है। सलीम डोला को एनसीबी के हेडक्वार्टर लाया गया है, जहां उससे पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर आप पार्टी के सदर मेराज मलिक को जमानत मिलने पर जेल से रिहा कर दिया गया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेराज मलिक ने कहा कि सारा खेल वक्त का है। इन जैसे हज़ारों नौजवान अभी भी जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह बीजेपी के लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, इस तरह इस मुल्क में बीजेपी के ख़िलाफ़ बात करना बहुत मुश्किल है। पंजाब के पटियाला ज़िले में राजपुरा और शंभू रेलवे स्टेशनों के दरमियान वाक़े एफसीआई के रेलवे लाइन पर गुज़िश्ता शब एक ज़ोरदार धमाके ने सभी को खौफ और दहशत में मुब्तला कर दिया। इस धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हिफाजती दस्तों के वाक़यात की फौरी तौर पर तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक धमाका इस कदर ज़ोरदार था कि उसकी आवाज़ दूर दराज के इलाक़ों में भी सुनाई गई। धमाके की खबर मिलते ही रेलवे सिक्योरिटी फोर्स, आरपीएफ, जीआरपी और मुकामी पुलिस के सीनियर ओहदेदारों पुलिस दस्ते के साथ मुकामी वाक़े पर पहुँचे। किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन किसी बड़ी साजिश का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है।
आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। आईपीएस ऑफिसर सीवी आनंद रियासत के नए डीजीपी मुकर्रर, हुकूमत की जानिब से अहकामात किए गए जारी। रियासत में खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस पन्ना नामी एक नई पहल का आगाज़, वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी का तकरीब से खिताब। तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर, निज़ामाबाद में दर्जे हरारत 46 डिग्री पार, लू लगने से मज़ीद 2 अफराद की मौत। तेलंगाना एसएससी इम्तिहानात के नताइज कल बरोज़े चारशंबा दोपहर 2 बजे जारी किए जाएंगे। संगारेड्डी के जोगीपेट में डिटेंशन सेंटर का क़याम, गैर कानूनी बैरूनी शहरियों को रखा जाएगा। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के किशन बाग में सोफा तैयारी के कारखाने में लगी आग, भारी माली नुकसान का खदशा। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।